Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that since past few videos, we are doing chapter 9 of your EVS textbook, which is Days to Celebrate. Children, I have discussed with you that this chapter deals with festivals, but the topic says that days to celebrate, the days that we celebrate. Children, there are various types of days that we celebrate. Some are personal days like our birthdays, our family functions like wedding or anniversary of any of the members, or any other celebration that is related to family. That is personal celebration, and we celebrate those days or dates. Then we have certain days of celebration which are related to particular community, particular society, to a limited number of people, which is not celebrated by entire society. There are certain festivals. Then there are certain days and dates that are celebrated by entire society. Whole society celebrates that particular festival. And such festivals are also called religious festival, which are related to religions. And then we have certain festivals which are celebrated by the entire nation, the whole country celebrates. So these are the varieties of days or dates that are celebrated in our country. So in this chapter, we will not only talk about festivals, common festivals, but we will talk about certain festivals which are not that very common, but we are aware of. We have heard the names of those festivals. Though we may be celebrating, we may not be celebrating, but we will talk about certain such festivals. But before discussing those festivals, we will discuss the common one. In my previous videos, I had discussed with you Christmas. हम थोड़ा सा backward चल रहे थे because the recent festival which is about to come is Christmas. तो हमने Christmas से ही शुरू किया था क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में Christmas आने वाला है, तो इसलिए हमने Christmas से ही स्टार्ट किया था. और फिर हमने बैकवर्ड स्टार्ट कर लिया था थोड़ा. जो बनारस का यूनिक फेस्टिवल है, हमने देव दीपावली की बात की थी, which may not be celebrated by entire nation, but which is one of the most important festival of Varanasi. And since it's the generation of, it's an era of internet or social networking, and this festival of Dev Deepavali has become very common, and it is known all over the world, not only in India but in in other countries also. People are now aware of this festival called Dev Deepavali. Then we talked about Deepavali, which is one of the most common and famous festival of our country. But it is not only celebrated in India, but it is celebrated out of India also. The Indians that are living in other countries, the NRIs, they also celebrate Diwali. जो इंडिया में रहते हैं वो तो सेलिब्रेट करते ही हैं दीपावली को, पर जो लोग इंडिया में नहीं रहते हैं, जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वो भी दीपावली मनाते हैं. ग्रेजुअली जो लोग इंडियंस नहीं हैं वो भी दीपावली मनाते हैं. And though it is related to Hinduism, Hindu religion, but as I have told you that India is a secular country, we respect all religions, and anybody can celebrate any festival. तो दिवाली भले ही हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन इसे किसी भी धर्म के लोग मना सकते हैं. आपने देखा होगा सिख भी मनाते हैं, जैन भी मनाते हैं, बुद्ध भी मनाते हैं. Anybody can celebrate this festival called Diwali. And मैं लिखते जाती हूँ जो हमने फेस्टिवल डिस्कस कर लिए हैं, सो दैट वी कैन हैव अ लिस्ट. हमने क्रिसमस डिस्कस कर लिया है, हमने देव दीपावली डिस्कस किया है, दिवाली डिस्कस कर लिया है, दशहरा पार्शियल डिस्कशन किया था. तो दिवाली की मैं रिवाइज करवा रही थी आपको दिवाली.
तो दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे देश विदेश सब जगह ये बहुत फेमस हो चुका है अब, और इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भले ही अमावस्या की रात होती है, न्यू मून डे होता है, आसमान में हमें चांद नहीं दिखाई देता, लेकिन पूरा कंट्री जो है वो जगमगा रहा होता है। द होल कंट्री बिकम्स एन एपिटॉम ऑफ लाइट। पूरा मतलब हर तरफ आपको रोशनी ही रोशनी दिखेगी। मार्केट जो है वो रोशनी से नहाए होते हैं, हर तरफ लाइटिंग, झालर, बल्ब और तरह तरह के लेजर लाइट्स से पूरा शहर जो है वो जगमगा रहा होता है। जिस भी शहर जाएंगे, जहां जहां दिवाली सेलिब्रेट होती है, दिवाली तो पूरे भारत में सेलिब्रेट होती है, तो सब तरफ जो देश है वो जगमगा रहा होता है। बट मेन इम्पोर्टेंस इस दिन होता है मिट्टी के दिए जलाने का, क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो स्टोरी है वो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी कि क्यों ये फेस्टिवल मनाया जाता है, किसको वर्शिप किया जाता है, किन गॉड एंड गॉडेसेस की पूजा की जाती है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, ये सारा मैंने आपके साथ अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज गो थ्रू दैट। देन वी विल टॉक अबाउट, हमने दशहरा स्टार्ट किया था, और दशहरा मैंने आपको बताया था कि ये 9 दिन की नवरात्रि के बाद ये फेस्टिवल आता है, जिसे हम दशहरा बोलते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बट इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज। जो इंडिया के बाहर इंडियंस रहते हैं वो तो सेलिब्रेट करते ही हैं, वो जिस भी कंट्री में रहते हैं वहां इस फेस्टिवल को वो मनाते हैं। लेकिन एक बड़े लेवल पर इसे नेपाल में भी मनाया जाता है, बांग्लादेश में मनाया जाता है, श्रीलंका में मनाया जाता है। नेपाल में इसे दसेन के नाम से कहा जाता है शायद, और वहां का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। नेपाल इज एक्चुअली वो हिंदू कंट्री जहाँ पे मैक्सिमम हिंदू लोग ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सारे लोग ही हिंदू हैं वहां पर। तो वहां पर इस फेस्टिवल को दशेन कहा जाता है, और इस फेस्टिवल को विजयदशमी भी कहा जाता है। विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो माँ दुर्गा है, लॉर्ड दुर्गा है, उन्होंने 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर नाम के डेमोन को मारा था। और इसकी स्टोरी रामायण के राम और रावण से भी है कि राम और रावण के बीच 10 दिन का युद्ध हुआ था, और 10वें दिन जो रावण है वो मारा गया था। तो ये फेस्टिवल बेसिकली जो है, जो मैंने आधा छोड़ा था इसके बारे में बताऊंगी मैं, कि ये फेस्टिवल जो है बेसिकली अच्छाई की जीत और बुराई की हार का सिंबल है। ये आपने सुना होगा कि रावण के 10 सिर थे। एक्चुअली में किसी इंसान के 10 सिर नहीं होते हैं, ये एक सिंबल है 10 बुराइयों का। जो 10 सिर है वो 10 बुराइयों का सिंबल है जो इंसान के अंदर होती हैं। तो ये जो दशहरा जो बुराई की हार है, ये 10 बुराई की हार है। जो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर जो 10 बुराइयां हैं उनको हराना है। तो हर साल क्या होता है कि पुतला बनाया जाता है रावण का, फिर उसे जलाया जाता है। तो वो रावण का पुतला एक्चुअली में क्या सिंबलाइज करता है? बुराई को। और 10 सिर जो रावण के हैं वो 10 बुराई हैं, जो ग्रीड है, एंगर है, ये सारी जो चीजें हैं। आप अभी बहुत छोटे हैं उन 10 बुराइयों के बारे में जानने के लिए, इसलिए मैं वो सारी 10 बुराइयों का नाम आपके सामने नहीं ले रही हूँ। सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 10 इम्पोर्टेंट बुराइयां होती हैं, जिसे कि हमें जो है ना छोड़ना चाहिए, हमें उसे खत्म करना है, अपने अंदर से उसे हटाना है, तो उसे जला देना है। 10 बुराइयों को खत्म करने का वो सिंबल है। तो और साथ में ये भी बताते हैं कि चाहे कोई कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो जाए, कितने भी उसमें सिद्धियां आ जाए, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विचार बुरे हैं, थॉट्स बुरे हैं, उसकी एक्टिविटीज बुरी है, उसका बिहेवियर बुरा है, उसकी अपब्रिंगिंग बुरी है, तो सारा ज्ञान, सारा नॉलेज बेकार है। अगर किसी के संस्कार अच्छे नहीं है, किसी के कल्चर मतलब किसी के सोच अच्छी नहीं है, तो उसका सारा जो नॉलेज है वो वेस्ट है। जैसे रावण को कहा जाता है कि वो प्रकांड पंडित, उसको बहुत नॉलेज था, उसको बहुत ज्ञान था, लेकिन वो बुराइयां थी उसके में, तो सारा जो उसका नॉलेज था वो वेस्ट हो गया बुराई की वजह से। तो इसीलिए कहा गया कि आप कितना भी नॉलेज ले लीजिए, लेकिन अगर आपका बिहेवियर, आपके
थॉट्स अगर सही नहीं है, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, तो सब चीजें बेकार हैं। संस्कार बहुत मैटर करते हैं, तो उस पर भी हमें मैक्सिमम ध्यान देना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा इससे हमें शिक्षा मिलती है थ्रू दशहरा, लेकिन आजकल क्या है, दशहरा या कोई भी फेस्टिवल एक एंटरटेनमेंट रह गया है। शिक्षा हम इससे कुछ नहीं लेते हैं, हम इसको एक हॉलीडे मानते हैं और एंटरटेनमेंट मानते हैं। घूमने जा रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। फेस्टिवल को के पीछे जो लर्निंग होती है, जो मैसेज होता है, वो हम भूलते जा रहे हैं। ग्रेजुअली वी आर फॉरगेटिंग द मैसेज दैट ईच एंड एवरी फेस्टिवल गिव्स अस, एंड वी आर जस्ट मेकिंग अ फेस्टिवल एंड और थिंकिंग फेस्टिवल एज अ डे ऑफ एंटरटेनमेंट, डे ऑफ एंजॉयमेंट. Of course, we celebrate a festival, we feel happy, but we should not forget the message that each festival conveys to us. जो भी हमें मैसेज मिलता है किसी भी फेस्टिवल से, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो दशहरा हो, we should not forget the message that each festival gives us. क्योंकि जो भी फेस्टिवल बने हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ रीजन होता है, एंड इट गिव्स अस अ मॉरल वैल्यू ऑल्सो. तो जो उस फेस्टिवल से रिलेटेड जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो मैसेजेस हैं, जो लेसन्स हैं, दैट वी शुड नेवर फॉरगेट. क्योंकि फेस्टिवल सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ मजे करने के लिए नहीं होता है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि उससे जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो भी, उससे भी हमें रिलेट करना चाहिए. तो दशहरा जो है वो बुराई की हार और अच्छाई की जीत है. मतलब अच्छाई की बुराई पर जीत का सिंबल है. तो हमें ये मानना चाहिए कि हमें अपनी सारी गुड क्वालिटीज को बढ़ाना है और बैड क्वालिटीज को खत्म करना है. हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उससे हमें मिटा देना है, उसे हमें जला देना है. ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है. हर साल रावण का पुतला बड़ा 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 होता जा रहा है. मतलब बुराई बड़ी ही होती जा रही है ना. बुराई को हम और बड़ा करते जा रहे हैं, पुतले को बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं. नो, बुराई को तो जलाना है ना. अगर बुराई एक बार जल गई तो बार बार उसे हम और बड़ा बना दे रहे हैं जलाने के लिए. हमें ये मैसेज, ये लेसन सीखना है कि बुराई को जलाना है तो उसका साइज बढ़ा के नहीं जलाना है, जितना है उतने में उसे खत्म कर देना है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल की, एंड दैट इज होली. हम होली की बात करते हैं. होली जो है वो भी एक हिंदुओं का ही फेमस फेस्टिवल है. इसको फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोलते हैं. FESTIVAL, फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर्स. एंड ये जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फेस्टिवल ही कलर्स से रिलेटेड है. लेकिन इसका इसको अगर नेचर के साथ अगर हम देखें तो ये आता है एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन, जो बसंत का मौसम है. दिस कम्स एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन. ठीक है, होली इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन. मतलब स्प्रिंग सीजन खत्म हो जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे आता है. ये बहुत गलत शायद मैसेज है कि होली जो है वसंत ऋतु में मनाई जाती है. वसंत ऋतु में नहीं मनाई जाती है, वसंत ऋतु के एंड में मनाई जाती है. जिस दिन होलिका जलाई जाती है, आपने सुना होगा, लोग होलिका जलाते हैं. तो वो जो होलिका जलाई जाती है वो लास्ट डे होता है वसंत का, जिस दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे आपके नॉर्थ में उसे संवत जलाना भी बोलते हैं. तो वो होलिका भी बुराई की हार और अच्छाई की जीत का प्रतीक है. सारी बुराइयों को खत्म कर देना और उसके बाद फिर एक नई शुरुआत करना, इसका वो सिंबल है. तो जब होलिका जला लेते हैं वो होता है स्प्रिंग सीजन का लास्ट डे, और फिर उसके बाद होली मनाई जाती है. मतलब स्प्रिंग सीजन उस दिन एंड हो जाता है और फिर नेक्स्ट डे होली मनाई जाती है. तो होलिका जिस दिन जलाते हैं वो स्प्रिंग सीजन का लास्ट डे होता है. और होलिका में क्या होता है? होलिका में आपने देखा होगा कि लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और जितना भी कबाड़ वाला चीज होता है ना वो सब उसमें जला दिया जाता है.
और साथ में लोग उसमें कुछ लोग कपूर डाल देते हैं, कैम्फर जिसको बोलते हैं वो डालते हैं, ताकि ना जो जर्म्स हैं वो मर जाएं। क्योंकि जो भी पुरानी चीजें बनी हैं उसके पीछे कोई लॉजिक रहता था। ऐसे ही सिर्फ कोई चीज नहीं बनी है, हर रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ। जो होलिका जलाई जाती है उसके पीछे भी एक मैसेज रहता है कि जो गंदी चीजें, जितना कूड़ा कपड़ा है वो जला दिया जाए, साथ में उसमें कुछ कैम्फर वगैरह डाल दिया जाए, कपूर डाल दिया जाए, उससे क्या होगा, सारे जर्म्स मर जाएंगे। फिर होलिका की जो स्टोरी है कि जो होलिका थी वो एक राजा थे रणकश्यप, उनकी वो बहन थी, और राजा का जो बेटा था प्रहलाद। ये स्टोरी आपने हो सकता है सुनी हो या हो सकता है न भी सुनी हो, इसीलिए मैं आपको नरेट कर रही हूँ ये स्टोरी होलिका वाली। राजा थे हिरण्यकश्यप, उनका एक बेटा था प्रहलाद, जो लॉर्ड विष्णु का बहुत बड़ा डिवोटी था, बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा लॉर्ड विष्णु को प्रेयर करता था, उनको वर्शिप करता था। लेकिन हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, वो अपने आप को गॉड बोलते थे। जो हिरण्यकश्यप राजा था, किंग था, वो अपने आप को भगवान मानता था, और वो अपने बेटे से कहता था कि तुम मेरे को पूजा करो, मेरे को वर्शिप करो, एंड डू नॉट वर्शिप लॉर्ड विष्णु। उसे बहुत गुस्सा आता था कि उसका बेटा उसकी पूजा न करके लॉर्ड विष्णु की पूजा करता है। तो वो अपने बेटे को उसने कई बार उसने मारने की कोशिश की, लेकिन लॉर्ड विष्णु की कृपा से वो हर बार बच जाता था। अब हिरण्यकश्यप बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि किसी तरह से मैं इसको खत्म कर दूं, क्योंकि ये मेरे को वर्शिप नहीं करता है, ये लॉर्ड विष्णु को वर्शिप करता है। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका, बहन का नाम था होलिका। तो होलिका को ये विश था, उनको ये बोन था, ये उनको ब्लेसिंग्स थी भगवान की तरफ से कि वो आग में कभी नहीं जलेगी। मतलब अगर वो आग में बैठ भी जाएंगी तो वो कभी नहीं जलेंगी। ये उनको भगवान की तरफ से ब्लेसिंग मिला था, गॉड की तरफ से उनको ये ब्लेसिंग थी, जिसको तो हिरण्यकश्यप ने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जाओ, तो आग में बैठ जाओ, ठीक है। एक में आग बनाएंगे, चिता बनाएंगे, फायर जिसको बोलते हैं, चिता बनाई जाएगी, उसमें तुम प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ, ठीक है। और तुमको तो भगवान की तरफ से वरदान है कि तुम तो जलोगी नहीं, तो प्रहलाद जल जाएगा और तुम इस बहाने प्रहलाद मर जाएगा, और ऐसा बच्चा दुनिया से खत्म हो जाएगा जो मेरी पूजा नहीं करता है, मेरे जैसे महान राजा की पूजा नहीं करता है। तो होलिका को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात माननी पड़ी, और होलिका मान गई, और फिर चिता सजाएगी, लकड़ी वकड़ी सजाएगी, और प्रहलाद को जबरदस्ती लाकर होलिका की गोद में बिठा दिया गया। देखिए, कोई भी ब्लेसिंग्स, कोई भी वरदान तभी काम करता है जब उसके पीछे हमारा जो मकसद है, जो हमारा मैसेज है, वो सही होना चाहिए। होलिका एक बुरे काम के लिए आग में बैठी थी, एक बच्चे को मारने के लिए, जो भगवान का डिवोटी था, वो एक अच्छा काम नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उसका नतीजा भी अच्छा नहीं है, तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। अगर मैंने बोला ना, अगर हमारे थॉट्स बुरे होंगे तो रिजल्ट भी बुरा ही होगा। तो वो एक बुरे थॉट के साथ आग में बैठी थी, और होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, लेकिन वो अकेले नहीं जलेगी ना, लेकिन किसी को लेके बैठेगी तो कैसे नहीं जलेगी। उसको ये वरदान तो नहीं था ना कि तुम किसी को लेकर बैठोगी तब भी नहीं जलोगी, अकेले के लिए वरदान था। एक तो ये रीजन। दूसरा, वो एक बुरे काम के लिए आग में बैठी थी, एक बुरे थॉट के साथ बैठी थी कि मुझे किसी को जान से मारना है। तो इसीलिए उसका ये जो वरदान था, जो ये ब्लेसिंग्स था, ये खत्म हो गया। और जब वो आग में प्रहलाद को लेकर बैठी, तो प्रहलाद ने अपने दोनों हैंड्स फोल्ड किए, और उसने आंखें बंद करके अपने भगवान को, अपने विष्णु भगवान को उसने याद करना शुरू किया, उनको उसने प्रे करना शुरू किया, और कंटिन्यूसली वो विष्णु भगवान को प्रे करता रहा। आग जला दिया गया, और हुआ क्या आपको पता होगा, अगर जिनको ये स्टोरी पता है। होलिका जो है उस आग में जलकर मर गई, और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ रहा।
तो ये कहा जाता है ना कि भगवान में, गॉड में बहुत पावर होती है। अगर हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अगर पक्का होगा तो भगवान डेफिनेटली हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन अगेन मैंने बोला, हमारे थॉट्स प्योर होने चाहिए, हमारे थॉट्स सही होने चाहिए। अगर हम किसी का बुरा सोच के प्रेयर करेंगे तो वो कभी प्रेयर पूरा नहीं होगा। अगर हम किसी के बुरे के लिए प्रेयर करेंगे तो फिर हमारी प्रेयर नहीं सुनी जाएगी। हमारी प्रेयर जो होनी चाहिए वो सबकी भलाई के लिए होनी चाहिए। वो बहुत सेल्फिश प्रेयर हमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तो भगवान भी प्योर हार्ट को पहचानते हैं ना। गॉड, कोई भी गॉड हो, ये नहीं कि मैं रिलीजन से रिलेटेड, कोई भी गॉड है वो प्योर हार्ट को पहचानते हैं। तो अगर हम मन में बुराई रखें, हमारे थॉट्स, हमारे डीड्स सब अगर बुरे हों, तो कोई भगवान, कोई भी गॉड हमारे प्रेयर नहीं सुनेंगे। तो ये जो स्टोरी है होलिका, ये इसी की का है कि होलिका जो है वो बुराई का प्रतीक है, वो जल गई, और प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है, तो प्रहलाद बच गए। तो इसीलिए इसी परंपरा के चलते हर साल होलिका जलाई जाती है, मतलब बुराई को जलाया जाता है। तो जितनी भी बुरी चीजें होती हैं वो हम उसमें जलाने का ऐसा सिंबलाइज, हम अपनी सारी बुराइयों को उस आग में जला दें, ऐसा हम मानते हैं। तो कई घरों में क्या होता है कि लेप लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, और बॉडी में लगाकर फिर वो जो उपटन का जो निकलता है उसको आग में डाला जाता है। मतलब हमारे सारे रोग, हमारी सारी बुराइयां जो है उस आग में जल जाए और हम एक प्योर सोल हो जाए। ये सिंबलाइज करता है होलिका को जलाना। उसमें लोग होलिका की मूर्ति रखते हैं, साथ में प्रहलाद की भी मूर्ति रखते हैं। ये एक नया ट्रेंड है, पर जरूरी नहीं है मूर्ति रखना, सिर्फ जला देना, होलिका जला देना भी सफिशिएंट है। फिर जब ये सारी बुरी चीजें जल गई तो उसके नेक्स्ट डे होलिका का फेस्टिवल मनाया जाता है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन का मतलब क्या है? स्प्रिंग सीजन एक बहुत ही प्लेजेंट सीजन होता है ना। और चारों तरफ आपको ग्रीन दिखेगा, बहुत पूरा जो नेचर है वो सबसे इसी समय सबसे ब्यूटीफुल लगता है। स्प्रिंग सीजन के समय में जो नेचर है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सब तरफ फ्लावर्स जो है ब्लूम करते हैं, बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, आपको गार्डन में बटरफ्लाईज दिखेंगी, बीज दिखेंगी जो कि फ्लावर से नेक्टर चूस रहे होते हैं, रस चूस रहे होते हैं। मतलब हर तरफ आपको कलर दिखता है स्प्रिंग सीजन में, है ना। फूल खिलते हैं, मैक्सिमम फ्लावर्स इस सीजन में ब्लूम करते हैं। आपको बर्ड की चर्पिंग मैक्सिमम आपको स्प्रिंग सीजन में ही सुनाई देगी। इसी सीजन में जो बर्ड्स हैं अपने नेस्ट बनाना शुरू करती हैं, क्योंकि वो एग्स देती हैं इसी सीजन में। दे ले एग्स, मैक्सिमम एग्स बर्ड्स जो है इसी सीजन में एग्स ले करती हैं, तो दे प्रिपेयर देयर नेस्ट ऑल्सो। तो हर तरफ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो होता है ना एनवायरमेंट रहता है। तो जब स्प्रिंग सीजन खत्म हो रहा होता है तो उसी को सिंबलाइज करने के, उस कलर्स के को सिंबलाइज करने के लिए लोग जो है वो कलर्स से होली खेलते हैं। अभी मैं वर्ड यूज कर रही हूँ खेलना। खेलने का मतलब होता है एंजॉय करना। तो एक दूसरे के ऊपर कलर्स लगाते हैं। अभी कलर्स भी दो तरह के होते हैं, एक लिक्विड कलर होता है और एक ड्राई कलर होता है। ड्राई कलर को बोलते हैं गुलाल। क्या बोलते हैं? गुलाल, ड्राई कलर। ड्राई कलर को गुलाल कहा जाता है और ये पाउडर के जैसा होता है। आजकल तो पूरा केमिकल्स ही यूज होता है कलर्स के नाम पर, विच इज नॉट सेफ फॉर स्किन। बट कुछ हर्बल कलर्स भी मिलते हैं, तो ट्राई टू यूज द हर्बल कलर्स एंड नॉट द केमिकल वन। पहले जब ये फेस्टिवल मनाते थे तो नेचुरल कलर्स बनते थे। नेचुरल कलर्स मतलब प्लांट्स से, फूलों से कलर्स बनाए जाते थे, लीव्स से कलर बनाए जाते थे। एक फूल होता है जिसे कहते हैं पलाश, उससे रेड कलर बनता था। फिर रोज के पेटल से कलर बनाए जाते थे, लीव से ग्रीन कलर बनता था, हल्दी से येलो कलर लिया जाता था। तो प्लांट से ही कलर बनाए जाते थे, वो स्किन को नुकसान नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे अभी बढ़ते जा रहा है ये जमाना, मिलावट का जमाना आ गया है, तो लोग केमिकल्स के कलर ज्यादा मार्केट में आ गए हैं, विच इज नॉट सेफ टू यूज।
तो आप जब होली खेलें तो डू नॉट यूज द कलर्स विच आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। हर्बल कलर्स लीजिए या नेचुरल कलर्स लीजिए, घर पे भी कलर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कलर से खेला जाता है। दिन में लोग क्या करते हैं, जो वाटर कलर होता है, लिक्विड कलर होता है, उससे खेलते हैं। एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, बाल्टी से रंग डालते हैं, पिचकारी से रंग डालते हैं, बलून में पानी भर के, कलर भर के एक दूसरे पे मारते हैं। कभी कभी वो बहुत डेंजरस हो जाता है क्योंकि इंजरी हो जाती है। बलून में जो कलर भर के मारने से कभी कभी बहुत तेज चोट लग जाती है। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो फेस्टिवल का मतलब हैप्पीनेस होता है, तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। तो कोई भी फेस्टिवल इस ढंग से ना मनाए कि दूसरों को परेशानी हो। मैं हमेशा इस बात को एक्सप्लेन करती हूँ, वी आवर हैप्पीनेस शुड नॉट बी रीजन फॉर अदर्स सॉरो। हमारी खुशी से दूसरों को दुख नहीं होना चाहिए, दूसरों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी फेस्टिवल आप इस तरह से मनाएं कि दूसरों को उससे परेशानी ना हो। तो कलर्स से खेलिए, केमिकल कलर्स नहीं यूज कीजिए, कोई भी ऐसी हजार्डियस डेंजरस चीज ना यूज करें जिससे कि किसी की स्किन या किसी को किसी तरह का भी नुकसान हो। तो जैसा मैंने बोला कि इस दिन लोग कलर्स एक दूसरे पे लिक्विड कलर्स डालते हैं थ्रू पिचकारी और बकेट में भरकर डालते हैं अलग अलग तरह के कलर्स। और फिर कोई किसी की बात का बुरा भी नहीं मानता है। इस दिन एक दूसरे को खूब रंग लगाने से कोई बुरा नहीं मानता है, सब मजे में होली खेलते हैं। फिर शाम के टाइम दे चेंज क्लोथ। दिन में तो पुराने कपड़े, ओल्ड कपड़े पहन के खेलते क्योंकि कलर से खराब हो सकते हैं। फिर शाम को नए कपड़े पहने जाते हैं। अगेन इट इज नॉट नेसेसरी टू वेयर न्यू क्लोथ्स, यू कैन वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। कोई भी फेस्टिवल का मतलब नए कपड़े नहीं होता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली पहन लीजिए, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं है। पहले पुराने कपड़े ही, साफ सुथरे कपड़े पहनिए। और फिर ड्राई कलर्स फिर लगाया जाता है जिसे हम गुलाल बोलते हैं या अबीर भी कहा जाता है। तो अबीर या गुलाल से खेला जाता है। इसमें फेस के ऊपर और इस तरह से गुलाल लगाया जाता है और लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं। इस दिन घरों में तरह तरह के डिलिशियस डिशेस बनाई जाती हैं और बहुत तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन जो स्पेशल डिश इस होली की होती है वो है गुजिया। गुजिया जो स्वीट है वो होली की स्पेशल डिश है, मिठाई है। और ये होली पर स्पेशली बनाई जाती है गुजिया। जैसे ईद पर सेवइयां होती है, इसी तरह से होली पर गुजिया जो है वो स्पेशल मिठाई होती है जो सबके घरों में लगभग बनती है। और अगर बनती नहीं है तो मार्केट से खरीद के लाई जाती है, लेकिन आती जरूर है गुजिया। उसके अलावा दही बड़े बनाए जाते हैं घरों में और तरह तरह के स्नैक्स भी बनते हैं। जिसके घर में बन सकता है तरह तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं। आई होप आपके घर में भी बनता ही होगा। तो लोग जब होली मिलने जाते हैं तो एक दूसरे को ऑफर करते हैं स्वीट्स और स्नैक्स, और फिर इस तरह से हंसी खुशी ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। आपने लोगों को सुना भी होगा, लोग शाउट करते हैं होली है, होली है। मतलब ये इंजॉयमेंट के लिए, सबको पता है कि होली है, लेकिन जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, जस्ट फॉर फन दे शाउट होली है, होली है। एक और चीज है होली पे, फाग गाना। होली के सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं, जिसे नॉर्थ में फाग बोला जाता है या फगुआ बोला जाता है। फाग गाया जाता है, होली के ही फेस्टिवल पे गाया जाता है, जो नॉर्थ में बहुत ही फेमस है फाग गाना। और बाकी इंडिया के पार्ट में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत कॉमन है फाग गाना। तो लोग फाग गाते हैं, ढोल बजाते हैं। इस तरह से ये पूरा फेस्टिवल जो है इट इज अ सिंबल ऑफ एंजॉयमेंट एंड हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन। कुछ बुरी चीजें भी लोग करते हैं, जबरदस्ती किसी को के जो नहीं भी खेलना चाहता उसको जबरदस्ती होली खिलाते हैं। कुछ लोग कीचड़ से खेलते हैं, मिट्टी से खेलते हैं, या वो ना कुछ केमिकल वाला जो कलर है वो जानबूझ कर लगा देते हैं, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट right. As I've told you that festival is for happiness and not for somebody's trouble. तो जैसा मैंने बोला कि लोग कीचड़ मिट्टी से खेलते हैं, जो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं और आपके हेल्थ के लिए भी वो अच्छा नहीं है।
त्योहार मतलब खुशी मनाइए, अच्छा अच्छा खाइए और उस डे को खूब एंजॉय कीजिए। अपनी सारी परेशानियों को उस एक दिन के लिए भूलकर खूब एंजॉय करने का दिन होता है वो, किसी को परेशान करने का लेकिन वो दिन नहीं होता है। तो ये होली जो है वो अल्टीमेटली खुशी का फेस्टिवल है, कलर्स का फेस्टिवल है। खूब कलर यूज कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए। तो हमने आज डिस्कस किया होली, और कुछ जो दशहरा का जो पार्ट बचा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और फेस्टिवल के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जैसा कि मैंने होली के बारे में बताया। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद डिस्कशन ऑन सम मोर फेस्टिवल्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।